Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed the concept of multiplication of a vector by a scalar. एक वेक्टर को हम एक स्केलर के साथ कैसे मल्टीपल करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज इट ब्रिंग इन केस ऑफ अ वेक्टर दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती है एक वेक्टर को जब आप एक स्केलर से मल्टीपल कर रहे हो डिपेंड्स होली एंड सोली अपॉन दिस स्केलर. So if but for a non-zero vector, so if lambda is this scalar lambda is greater than 0 or less than 0 or equal to 0, then it brings a lot of changes in case of a vector. तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने प्रीवियस क्लास में सब डिस्कस किया है. नाउ टुडेज टॉपिक विल अगेन स्टार्ट बाय द कंसेप्ट. एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है, वेक्टर्स को हम लीनियरली कंबाइन कैसे करेंगे. तो जिगरा सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर v1 और दूसरा है वेक्टर v2. ये जरूरी नहीं है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ दो वेक्टर्स की कर सकते हैं. इट्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू टू वेक्टर्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू n नंबर ऑफ वेक्टर्स. लेकिन प्रिसाइजली अगर हम ले लेंगे, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर v1 और दूसरा है वेक्टर v2, और आपके पास दो स्केलर्स हैं, सपोज एक है लैम्डा और दूसरा है म्यू. So you have two vectors v1 and v2 which are represented obviously by their directed line segments, and you have two scalars lambda and mu, two real numbers lambda and mu. Then the vector lambda times v1, then the vector lambda times v1 plus mu times v2. This vector, it obviously must be a vector, क्योंकि v1 एक वेक्टर है, लैम्डा से मल्टीपल कर दो, स्केलर से मल्टीपल कर दो, एक वेक्टर ही बनेगा. v2 एक वेक्टर है, स्केलर से मल्टीपल कर दो म्यू2 से, तो फिर से एक वेक्टर बनेगा. दो वेक्टर्स का सम कर दो, ये फिर से एक वेक्टर बनेगा. और यही वेक्टर जो बनेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा दो वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स को अपने अपने स्केलर से मल्टीपल करके फिर बाद में एडिशन कर दिया, तो यही जो बनता है, ये वेक्टर जो बनता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन. This is actually called the linear combination of vectors. Actually called the linear combination of vectors v1 and v2. This vector lambda times v1 plus mu times v2 is called the linear combination of vectors v1 and v2. Why? Because here vectors v1 and v2 are combined with each other but linearly. That's why it is the structure is termed as the linear combination of vectors v1 and v2. But as I have mentioned, the linear combination of vectors cannot be confined only to two vectors. We can extend this concept up to n number of vectors. So for instance, you have vectors v1, v2, v3, dash 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 vn, and you have scalars a1, a2, a3, a4, dash 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 an. फिर एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीपल कर दो, तो सपोज a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन प्लस an vn. यहां पे भी सारे वेक्टर्स v1 v2 v3 vn अपने कंबाइन हो रहे हैं लीनियरली. दिस इज अगेन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 dash 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 vn. So linear combination of vectors is not confined only to two vectors. We can extend this concept to up to n number of vectors. So this vector lambda times v1 plus mu times v2 is called the linear combination of v1 and v2. Now when two vectors are said to be linearly independent, or when vectors are said to be linearly independent, and when they are said to be linearly dependent. For example, you have vectors v1 and v2, and you have scalars lambda and mu. You have formed the linear combination of vectors. So lambda times v1 plus mu times v2. This is the linear combination of vectors v1 and v2. If that linear combination of vectors is equal to zero vector, आपने दो वेक्टर्स लिए, दो स्केलर्स लिए, बना दी उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन. अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है, एंड अगर इसमें से इंप्लाई हो रहा है कि lambda is equal to mu is equal to 0, means all the scalars included in the linear combination of vectors are zeros, then the vectors v1 and v2, then vectors v1 comma v2 in that linear combination, they are said to be linearly
they are said to be linearly independent. Then these vectors v1 and v2, they are said to be linearly independent when their linear combination is equal to 0, and that will imply the scalars are all zeros. लेकिन when these vectors v1 and v2 are said to be linearly dependent, if their linear combination lambda times v1 plus mu times v2 is equal to 0 vector, अगर दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर है, लेकिन इसमें से इंप्लाई हो रहा है, क्या इंप्लाई हो रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर्स इज नॉट 0. इसमें से अगर इंप्लाई हो रहा है इफ एटलीस्ट लेमड़ा और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इसमें से या लेमड़ा या म्यू 0 के बराबर नहीं है, अगर लेमड़ा 0 है म्यू 0 नहीं है, अगर म्यू 0 है लेमड़ा 0 नहीं है, यानी एट लीस्ट वन ऑफ द स्केलर्स, यहां पे 2 स्केलर्स हैं. अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे जिसमें हम n वेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो अगर उन सारे स्केलर्स में कम से कम एक स्केलर 0 के बराबर नहीं है, then in that linear combination the vectors v1 and v2, in that combination the vectors v1 and v2 are said to be linearly dependent vectors. In that linear combination of vectors, the vectors v1 and v2 are said to be linearly dependent vectors. So when vectors are said to be linearly independent and when they are said to be linearly dependent, if the linear combination is equal to 0 vector, and that will imply all the scalars in that linear combination are zeros, then vectors are obviously known as what? Linearly independent vectors. And these linearly independent vectors, they are sometimes abbreviated as LI, linearly independent. And if the linear combination of vectors becomes 0 vector, and at least one of the scalars which are involved in the linear combination is not 0, then the vectors involved in that linear combination are said to be linearly dependent vectors. That was the short concept. एक छोटा सा concept था जिगरा, linear combination of vectors. Vectors की linear combination क्या होती है, and vectors को कब कहेंगे कि linearly dependent है, और vectors को कब कहेंगे कि ये linearly independent है. Now next concept lies there, and that would be the definition of a position vector. Now we have the definition of a position vector. एक position vector क्या होता है? Position vector of a point, चाहे ये point plane में lie कर रहा है या space में lie कर रहा है, तो इसका position vector actually क्या होता है? As the name suggests, position vector, it will definitely describe the position of that point with respect to the origin. So first we will discuss the definition. क्या है? Let O be a fixed point. अगर O कोई fixed point है and P be any point, और P कोई भी point है, चाहे plane में है या space में है, then the position of P, तब इस point P की position with respect to O, with respect to this fixed point, that's O origin, is completely known. तब इसकी position, इस point P की position हमें completely known हो जाएगी, पता चल जाएगी कब? If we know the vector OP, अगर हमें वेक्टर OP पता चलेगा. तो फॉर इंस्टेंस आपके पास एक प्लेन है, चाहे ये पॉइंट प्लेन में है या स्पेस में है, अभी हम प्लेन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लेन है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, abscissa. Abscissa is actually the x coordinate of a point, and this is here y axis, that is y dash, two perpendicular axis, x dash horizontal axis, x axis, and vertical axis y axis. And suppose you have here you have the fixed point, that is O, which is called the origin. And suppose you have a point here in the first quadrant which is denoted by point P. Then the position of point P is completely known. So you have a fixed point and you have any point in the plane. So then the position of point P is completely known. तब इस point P की position हमें पता चल जाएगी कब? If we know the vector OP. अगर हम O से P तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ऐसे,
तो O से P तक हमने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा की है। यही OP वेक्टर जो बनेगा यही डिस्क्राइब करेगा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ये पॉइंट P कहां पे है, सो ये पॉइंट P कहां पे है ये डिस्क्राइब कौन करेगा, ये वेक्टर OP इसकी पोजीशन बता देगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये वेक्टर OP, और यही वेक्टर OP इस पॉइंट P का बनता है पोजीशन वेक्टर, विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल r वेक्टर, जो स्मॉल r वेक्टर से यूजुअली डिनोट होता है। यहां पे हमने लिखा है इफ वी नो द वेक्टर OP वेक्टर, दिस वेक्टर OP वेक्टर, यही वेक्टर OP वेक्टर यूजुअली डिनोटेड बाय R वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं यूजुअली कैसे, R वेक्टर से, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, एब्रिविएटेड एज PV। तो पोजीशन वेक्टर को हम शॉर्टली एब्रिविएट कर सकते हैं कैसे, PV ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। तो जिगरा पोजीशन वेक्टर कोई बड़ा सा कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली गिव्स यू द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। कोई भी पॉइंट ओरिजिन के विथ रेस्पेक्ट कहां पे है, किस डायरेक्शन में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, स्पेस में कहां पे है, कौन से ऑक्टेंट में, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट्स की, बिकॉज इट विल डिवाइड द होल प्लेन इनटू 4 इक्वल रीजन्स एंड फोर्थ रीजन इज फोर्थ पार्ट ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। लेकिन स्पेस की बात करेंगे तो वहां पे ऑक्टेंट की बात हम करते हैं, बिकॉज द 3 डायमेंशनल एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस डिवाइड्स द स्पेस इनटू 8 regions and 8th part of a space is called an octant। तो ये पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से ऑक्टेंट में है डिस्क्राइब करेगा। अगर हम ओरिजिन से ड्रा करेंगे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट उस पॉइंट P पे, तो ओरिजिन से जब हम ड्रा करेंगे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट उस पॉइंट P पे, वहां पे बनेगा OP वेक्टर, वही OP वेक्टर उस पॉइंट P की पोजीशन डिस्क्राइब करेगा, ये कहां पे है, दैट इज व्हाई दिस OP वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जिसे हम एब्रिविएट करते हैं कैसे, PV, P.V, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली जिगरा कुछ नहीं है, इट डायरेक्टली इट्स अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट drawn from the origin to that point whose position vector you have to locate। so एक origin से उस point P तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मार दो, एक वेक्टर मार दो, वही वेक्टर जो बनेगा वही वेक्टर बनेगा उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, चाहे वो प्लेन में लाई कर रहा है चाहे वो स्पेस में लाई कर रहा है। तो ध्यान रखना चाहिए पोजीशन वेक्टर, हम जब भी हम किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, सपोज अगर आपके पास A पॉइंट है और इस A पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ऑब्वियसली वो कौन सा वेक्टर होगा, OA वेक्टर। यानी हर किसी पोजीशन वेक्टर अगर उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे तो हर किसी पोजीशन वेक्टर के का इनिशियल पॉइंट होगा ओरिजिन, बिकॉज वी हैव टू ड्रा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू दैट वेरी पॉइंट। So position vector of point P is usually denoted by small r vector, इसको हम small r vector से डिनोट करते हैं। हाँ, यहां पे हमने लिखा है with respect to the origin, it is conventional to write, इसे हम conventionally कैसे लिखते हैं, P with position vector small r। यानी P आपके पास एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑब्वियसली कोई वेक्टर होगा, तो P एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है हमने R से डिनोट किया, तो ये हम ऐसे लिखते हैं पॉइंट P और ब्रेसेस में रखते हैं स्मॉल r वेक्टर, दैट इज P इज अ पॉइंट एंड इट इज पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल r वेक्टर। द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट which you have demarcated from origin O to the point P, and that vector actually has been this denoted by small r vector। So this is actually the position vector, the definition of position vector। Since P has its position vector, so every point, whether line is in a plane or in a space, must has its position vector। अगर आपके पास A point है, जैसे मैंने अभी बता दिया, तो उसका position vector फिर क्या होगा, OA वेक्टर। अगर आपके पास जिगरा पॉइंट B है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर ऑब्वियसली। अगर आपके पास पॉइंट C है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली होगा जिगरा OC वेक्टर। बट इन द सब्सिक्वेंट वर्क द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A यानी OA वेक्टर, इसको हम यूजुअली A वेक्टर से डिनोट करते हैं, और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर यानी OB वेक्टर
इसको हम स्मॉल b वेक्टर से डिनोट करते हैं, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c विच इज OC वेक्टर, इसको हम स्मॉल c वेक्टर से डिनोट करते हैं. सो वेयरएवर यू लोकेट स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर, स्मॉल c वेक्टर, दैट आर एक्चुअली नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. सो इन द सब्सिक्वेंट वर्क, आगे जहां पर भी हम यूज करेंगे OA वेक्टर, उसको हम स्मॉल a वेक्टर से डिनोट करेंगे. OB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, उसको हम स्मॉल b वेक्टर से डिनोट करेंगे. और OC वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, उसको हम स्मॉल c वेक्टर से डिनोट करेंगे, जैसे हमने पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर से डिनोट किया था. इसी तरह पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल a वेक्टर, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल b वेक्टर, और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल c वेक्टर. इन द सब्सिक्वेंट वर्क वी विल यूज दीज कांसेप्ट्स, वी विल यूज दीज टर्म्स. So Jigra, that was all about the definition of a position vector. It's simple सी definition है, क्या है position vector of a point. Now we will discuss vector in terms of position vectors of its endpoints. एक vector आपके पास है, obviously that must be represented by some directed line segment. When that is represented by some directed line segment, that must has its initial as well as final points. इसका initial point है, इसका final point है. Initial है लेकिन point है, final है लेकिन point है. पॉइंट है, चाहे ये प्लेन में है चाहे ये स्पेस में है, इनके होंगे ऑब्वियसली व्हाट, पोजीशन वेक्टर्स. तो अगर एक आपके पास एक वेक्टर है जिसके इनिशियल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर है, उस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. ये रहेगा हमारा ये टॉपिक. इसके बाद पोजीशन वेक्टर के बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी हैव वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स. एक वेक्टर हमारे पास है, उसका इनिशियल पॉइंट होगा, उसके फाइनल पॉइंट होंगे. इसका इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, तो ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, फाइनल पॉइंट का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा. तो कैसे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इन ही एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज जिगरा हमारे पास एक वेक्टर है यहां पे, दिस इज अवर वेक्टर AB. Suppose we have a vector AB. Suppose its initial point is A and its final point is B. अगर initial point A है, final point B है, तो obviously direction होगी from A to B. So let AB be a vector. Let AB be a vector with its initial points, with its initial and with its initial and final points as A and B respectively. सपोज जिगरा ए बी हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और जिसका फाइनल पॉइंट बी है. अब इसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसके इनिशियल और इसके फाइनल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स में. तो जिगर ए एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा, और सपोज हम उस पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेंगे स्मॉल ए वेक्टर से, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हम सब्सिक्वेंट वर्क में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए को डिनोट करेंगे वे स्मॉल ए. सिमिलरली हमारे पास पॉइंट बी है, तो इट मस्ट हैज इट्स पोजीशन वेक्टर, एंड सपोज दैट पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी वेक्टर. स्मॉल ए वेक्टर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, बट व्हाट डज दिस पोजीशन वेक्टर एक्चुअली मीन? पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. सो हमें ओरिजिन को कंसीडर करना पड़ेगा. सपोज ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन. सो ओरिजिन से जब आप एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे टुवर्ड्स ए, ये ओ ए वेक्टर जो बनेगा दैट मस्ट बी व्हाट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए वेक्टर. Similarly, point B has its position vector as small b, but position vector of a point means the position of point B with respect to origin. So origin से एक और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, origin से एक और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे टू पॉइंट B, और इसकी डायरेक्शन ऐसे हम ले लेंगे, तो ये OB वेक्टर जो बनेगा ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज डिनोटेड बाय स्मॉल b वेक्टर, तो OB वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल b वेक्टर. तो यहां पे हम लिखेंगे let the position vectors of
let the position vectors of points A and B be small a vector and small b vector respectively. स्मॉल ए वेक्टर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है और स्मॉल बी वेक्टर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ए वेक्टर डिनोट करता है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन और बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ. तो दैट इज, इसका क्या मतलब, ये ओ ए वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर के बराबर होगा. तो स्मॉल ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर एंड, और क्या होगा जिगरा, शाबाश, ओ बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर और बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर. Because small a vector and small b vector, they are nothing, they are the position vectors of points A and B respectively. Now from the figure we have, now from the figure we have by ट्रायंगल लॉ. यहां पे ट्रायंगल बनता है ऑब्वियसली, हर किसी साइड की अपनी अपनी डायरेक्शन है, तो यहां पे होल्ड होगा ट्रायंगल लॉ. नाउ फ्रॉम द फिगर बाय ट्रायंगल लॉ व्हाट वी हैव, देखो जिगरा, ओ ए वेक्टर and a b vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order. Then by triangle of vector addition, their resultant must be a vector represented by the third side taken in opposite side, taken in opposite order. And what is that third side? OB vector. So O A vector plus A B vector must be equal to OB vector. O A vector plus A B vector must be equal to OB vector because by triangle law. तो implies, यहां से जिगरा क्या आएगा, ए बी वेक्टर को ऐसे ही रखेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर को आरएचएस में ले लो, तो यहां पे बचेगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. तो ए बी वेक्टर इज इक्वल